alaikum everyone. I hope you all are fine and I hope you are studying well at home. So today I am here to give you a lecture on 3 class and our subject is geography. Okay? Social study is our subject and the unit is geography and the lesson number 2 that is called maths. Lesson number concept, lesson number 2 that is on your page 8. Social study book and it's on page number 8. So lesson number 2 maths. So what I'm going to tell you in this lesson is, first of all let me tell you the earth. What is the earth? Is a sphere, round ball, right? But to show its surface, to show in a flat surface, we use a drawing which is called map. The surface of the earth is a sphere. As you see, it's kind of a ball, but a flat form which is used, flat drawing form which is used to show this surface, this sphere is called map. So why we use map? We use map because it tells us where the sea is, where the landforms are, where the rivers are, where the countries are, and how much distance is between them, and how many countries are present in this world. So all of these things could be sorted out with the help of map. Map क्या है? Basically, map is basically a flat drawing which we use to show the sphere of earth. Okay, and a map shows us exact the position and the shape of the place, actual size and everything. So first of all let me tell you from your book. On your book, page number 8, there are two pictures provided by the booksellers. So first picture is a picture of a street. It's a street in Lahore, right? So first they have used this picture. This picture is the actual depiction of that area. ठीक है? Actual depiction means कि उस area को जो है वो define करने के लिए, for example, if you go in your street और उसकी picture लेते हैं तो वो कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी. ठीक है? You would be able to see the houses, you would be able to see the road, you would be able to see the cars moving on the road. But the second picture, the used over here, is called map. This is a basically map in which you would see symbols, in which you would see different kind of navigation stars, but उससे क्या होता है? That is called map. So the difference between the actual footage of that place and the map is, in map there is a symbols which is used to tell you that what kind of things are present over here, and in photo you exactly see what the things are over there. So after that I will tell you first thing उर्दू में हो बेटा. पहली बात ये है कि मैप, व्हाट इज द मैप? मैप बेसिकली क्या है? इट्स हमारी अर्थ जो है वो एक राउंड फॉर्म में है, राइट, इन अ स्फीयर है. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हमने फ्लैट ड्राइंग में शो करने के लिए व्हाट वी नीड इज मैप्स. ठीक है? फ्लैट ड्राइंग जो होती है वो क्या कहलाती है? वो मैप कहलाती है. और मैप हम यूज किस लिए करते हैं? मैप हम यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर हाउ मेनी कंट्रीज आर ओवर देयर. ठीक है? कितने मुल्क हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ सरफेस इट इज. ठीक है? उसमें लैंड फॉर्म्स कितने हैं, उसमें रिवर्स, दरिया कितने हैं. ठीक है? इस तरह की सारी चीजें जो है वो कितनी मौजूद हैं. एंड आफ्टर दैट हम इफ वी लुक एट द मैप, ठीक है, हम मैप के ऊपर देखते हैं तो देयर इज सर्टेन स्केल. ठीक है? आपको पता है कि वी हैव अ राउंड ग्लोब लाइक दिस. ठीक है? और इस ग्लोब को जो है वो हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड राउंड सरफेस. ये भी मैप है लेकिन ये एक राउंड स्फीयर है टू शो व्हाट काइंड ऑफ द फिजिकल अर्थ इज. बट उसके लिए भी हम यूज करते हैं मैप्स जो कि एक फ्लैट ड्राइंग होती है लाइक दिस. ठीक है? दिस इज कॉल्ड मैप. उसके बाद हम क्या करते हैं? वी यूज स्केल. अब स्केल बेसिकली बेटा क्या है? स्केल बेसिकली है कि जब हम पूरी दुनिया के अंदर कितने ही किलोमीटर, थाउजेंड्स, इन लैक्स देयर वुड बी किलोमीटर्स वुड बी देयर, एक पूरी दुनिया के अंदर. तो उस दुनिया के अंदर वो सारे किलोमीटर्स हम मैप पे तो बना तो नहीं सकते, इतनी बड़ी ड्राइंग तो नहीं हम ड्रॉ कर सकते. सो व्हाट वी नीड इज कि हम उसमें यूज करते हैं स्केल. अब स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब ये होता है
फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस 0 1 2 3 4 5। अगर आप इसको देखते हो तो there is from 0 to 1 there is written 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम मैप में क्या यूज करते हैं, व्हाट वी डू इज हम उसके लिए डिफरेंट जो है वो किलोमीटर्स के जो है वो स्केल बना लेते हैं। फॉर दैट वी डू अंडरस्टैंड कि एक एरिया के अंदर हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर, या इतने किलोमीटर, उसमें वो हम क्या करते हैं वो एक स्ट्रीट के अंदर जो है वो मैप दिया होता है। सो वी माइट यूज स्केल फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ अ मैप, हम 1 सेंटीमीटर का भी कर सकते हैं स्केल यूज कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हम 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर से शो करते हैं, या हम 500 किलोमीटर से शो करते हैं, या 1000 किलोमीटर से जो है वो शो करते हैं। सो ऑन अ मैप बेसिकली एवरी फीचर, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्या होती है, फर्स्ट हमने क्या अंडरस्टैंड किया स्केल। अब स्केल हम यूज करते हैं कि दुनिया जो है वो उसकी सरफेस कितनी, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसको हम व्हाट वी यूज इट इन द फॉर्म ऑफ स्केल। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर, उसको हम 1 सेंटीमीटर को आगे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर वी यूज 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर और मे बी 5 किलोमीटर, वो हम मैप के नीचे जो है उसको डिस्क्राइब भी कर देते हैं। सेकेंड द थिंग विच वी यूज टू अंडरस्टैंड मैप इज की, ठीक है। व्हाई वी यूज की हम क्यों यूज करते हैं, we use key because if you look at the map you won't understand what the things are present over there, ठीक है, until unless you don't look at the key. So हर मैप की क्या है, there is a map shown over here. If you look at page number 9, अपना पेज नंबर 9 आप अगर खोलते हैं, ठीक है, अपनी सोशल स्टडी की बुक का, तो what you would see is कि यहाँ पर एक मैप मौजूद है, but there are different symbols. Different symbols are used to show different things. मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स यूज किए जाते हैं टू शो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ कि इस चीज के अंदर, इस मैप के अंदर, इस एरिया के अंदर ये चीजें हैं वो। ओके बेटा, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ जो है वो यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल हियर इफ यू सी, यहाँ क्या है, देयर इज अ मॉस्क ओवर हियर, सो फॉर दैट वी यूज मॉस्क सिंबल। दैट मींस कि इस एरिया में, इस जगह पर देयर वुड बी अ मॉस्क। अगर आप जो है वो घर पे तो नहीं, इफ यू आर ट्रैवलिंग और आप उसमें नेविगेशन यूज कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स यूज कर रहे होते हैं, इफ यू दे आर गोइंग टू सम न्यू प्लेस, तो उसमें क्या यूज कर रहे होते हैं हम मैप, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। तो दैट वी डू अंडरस्टैंड कि अगर हमने ये देखना है, इफ यू वांट टू लुक एट द थिंग कि कहाँ किस जगह पर जो है वो शॉप आएगी, ठीक है, फॉर रीडेबल्स, किस जगह पर रेस्ट एरिया आएगा, किस जगह पर पेट्रोल पंप आएगा, तो फॉर दैट वी यूज मैप। तो उसमें क्या होता है, मैप से हमें पता चल रहा था कि इतने किलोमीटर्स के बाद यहाँ पर जो है वो पेट्रोल पंप जो है वो आ जाएगा, तो हम अपनी जो है जरूरत पूरी कर लेंगे। फॉर दैट वी यूज सिंबल्स। अब मैप में क्या होता है, जहाँ पर मॉस्क होगी वहां पर क्या है, देयर इज अ की मॉस्क, ठीक है। उसके बाद अब ब्रिज के लिए हम क्या करें, डिफरेंट यानी कि जो है वो चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद स्कूल है, ठीक है, स्कूल के लिए हम एक पेंसिल जो भी यूज कर लेते हैं, वो सारे सिंबल आपके मैप के ऊपर क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे, ताकि आपको ये पता चले इन दिस स्पेसिफिक एरिया व्हाट काइंड ऑफ द स्टफ इज प्रेजेंट ओवर देयर। आइदर देयर इज अ मॉस्क कमिंग अप, आइदर देयर इज अ ब्रिज है, उसमें रेलवे ट्रैक है, उसमें देयर आर रोड्स, उसमें देयर इज अ रिवर। फॉर दैट वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल। फॉर एग्जांपल if you want to show river, so for river basically for water we normally use blue lines, ठीक है। blue lines हम जो है वो यूज करते हैं to show the place that this contains a river. And after that if we need to represent the tree in the map, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें tree का symbol लगा देते हैं, so that you understand कि इस जगह पर, इस एरिया के अंदर क्या है, tree मौजूद है। For example, if you look at this thing, यहाँ पर की क्या दिए हैं, trees represents forest, hospital represents this building, ठीक है, farm, इसमें क्या है, in this particular area these things are present, so उन चीजों को understand करने के लिए you have a key. अगर if you look at the map of a simple, or if you look at this globe, अगर आप इस globe को देखते हो, if you look at this thing, तो आपको क्या पता चलेगा, the blue thing shows that there is an ocean, the blue color shows ocean, and the brown color shows there is a land, ठीक है। फिर then there is a countries जो करते हैं different continent to continent, हमने उनके colors different किए होते हैं। क्यों? Because we need to tell you, we need people to understand कि ये वाला एरिया जो है वो उससे मुख्तलिफ है और यहाँ पर ये चीजें जो है वो मौजूद है। So a large number of areas are shown
help of a little map. For example, if you look at this place, अगर आप कराची पे देखते हो, लाहौर में देखते हो, तो it's a very huge place. But if you look at the map, तो वो आपको बिल्कुल छोटी सी नजर आएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे किलोमीटर्स को you have combined all them down into a simple pieces, into simple bits. Then after that, first we use scale, कि हम किलोमीटर्स को शो करने के लिए we use a little scale, कि इस जगह के अंदर how many kilometers are present, इतने किलोमीटर्स के बाद ये चीज आएगी, ठीक है. For that we use scale. Second is to understand a map, what kind of things are present in that particular area, we use key. And after that there comes an atlas. What is atlas? Atlas basically it's a book of maps. It's a book of maps. In that book, in that particular book, okay बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एटलस जो है वो क्या है? एटलस एक बुक है, एक किताब है जिसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ मैप्स प्रेजेंट. उसमें क्या है, हर कॉन्टिनेंट का अलग मैप होगा, ठीक है. देयर हर कंट्री का भी अलग से मैप होता है. देन यू हैव द कीज टू अंडरस्टैंड मैप्स, ठीक है. हर जगह पर हर जो है वो मैप में कीज जो होती है वो वेरी करती है फ्रॉम वन मैप टू अदर मैप, बिकॉज हर मैप को बनाने वाला इंसान जो है, शख्स जो है वो मुख्तलिफ है. तो फॉर दैट वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कीज. तो अब उसके लिए एटलस क्या करते हैं? एटलस, इफ यू वांट टू नो अबाउट द वर्ल्ड, वी यूज दिस बुक दैट इज कॉल्ड एटलस. इन दिस बुक यू कैन परचेज इट फ्रॉम एनीवेयर, आप उसको परचेज कर सकते हो. उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि आपको मैप्स के बारे में बताएंगे, आपको कॉन्टिनेंट की, कंट्रीज के डिफरेंट चीजों के बारे में मैप्स इजीली जो है वो अवेलेबल होते हैं. यू विल सी इन अ कंबाइंड फॉर्म. So after that, in the map we also use directions. What we use is we use directions. Directions क्या होती है? You know, north, south, east और west. We have 4 directions. ठीक है? उसमें क्या करते हैं? To show the place is in the north or in south. For example, if you look at the Pakistan map, तो अगर आप northern area जो है वो आप कहते हो, why you call that specific thing a northern area? Because that place is located in a north side. आप साउथ पंजाब की बात करते हैं, ठीक है. You call that Punjab area south. Why? Because that particular area is present in the south direction. For that, अगर हमने जो है वो लोगों को ट्रैवल करने में और सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने में कि कौन सी जगह कहाँ प्रेजेंट है, तो उसमें क्या है, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट हम जो है वो यूज करते हैं. After that, we have how many continent? We have 7 continent in this world. पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 7 continent मौजूद है. Why we call 7 continent? Because the whole world is divided into 7 continents. Each continent contains different kinds of countries. Each continent contains different kinds of countries. तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, कॉन्टिनेंट बेसिकली क्या है? कॉन्टिनेंट पूरी दुनिया को डिवाइड करने का एक तरीका है कि पूरी दुनिया को हमने 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ठीक है. वी हैव डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. अब उन 7 हिस्सों को हमने क्या नाम दे दिए? कॉन्टिनेंट्स का नाम दे दिया. एवरी कॉन्टिनेंट हैज सर्टेन कंट्रीज. फॉर एग्जांपल, एक कॉन्टिनेंट के अंदर 54 कंट्रीज भी हो सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो एक कंट्री भी हो सकता है. सो दैट डिपेंड्स ऑन दैट कॉन्टिनेंट. सो कॉन्टिनेंट में क्या है हमारे पास? वी हैव 7 कॉन्टिनेंट. फर्स्ट कॉन्टिनेंट वी हैव इज यूरोप, ठीक है. यू नो अबाउट यूरोप. यूरोप के अंदर मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीज जो है वो आते हैं. देन देयर कम्स एशिया, ठीक है. आफ्टर एशिया देयर कम्स अफ्रीका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ठीक है. उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड देयर कम्स द लास्ट कॉन्टिनेंट दैट इज कॉल्ड ओशिनिया. Oceania is further divided into 5 parts. First of all, how many continents we have? We have 7 continents. If you look at the page number 9 on your book, 9 पे अगर आप देखते हैं, there is a table over there, right? There is a table over there which shows continent. First क्या है? Europe. Then it comes Asia, then Africa, Antarctica, North America, South America, and Oceania, which is written over here as well. But the last continent, that is called Oceania, is further divided into 5 major parts. Why? Because you have an idea कि हमारे जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे oceans जो है वो मौजूद है,
ठीक है. So how many oceans we have divided the Oceania into 5 major oceans. Major oceans कौन से हैं हमारे पास? ठीक है. First one is Pacific Ocean. Yes. Second is Atlantic Ocean. Okay. Third is Indian Ocean. ठीक है. Indian Ocean is also comes in Pakistan as well. आपको कराची के अंदर जो ocean है that is also called. Then there is an Arctic Ocean and there is a Southern Ocean. So basically ocean जो है Oceania, the 7th continent is further divided into 5 major oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. So basically we have in this chapter is we studied about scale E. And the second is, if you look at the page number 10, आपके पेज नंबर 10 के ऊपर, ठीक है, there is a drawing, ठीक है. The drawing shows, आपको अगर ये देखें, there is a equator, ठीक है. Equator बना हुआ है in the middle of that drawing. नीचे क्या है? There is an Indian Ocean, then Southern Ocean, ये आपको ओशनिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, ये सारी चीजें आपको उन्होंने क्या की है, एक ड्राइंग फ्लैट फॉर्म में दिखाई दी है. बट इफ यू लुक एट दिस ग्लोब, अगर आप इस ग्लोब के ऊपर जो है वो देखते हो, तो व्हाट दिस प्लेस इज द प्लेस व्हिच डिवाइड्स द ओशन इनटू 2 हेमिस्फीयर्स. 2 हेमिस्फीयर 2 चीजों में डिवाइड कर रही है पूरी अर्थ को, ठीक है, 2 हिस्सों में. वो बीच वाली हिस्सा क्या कहलाएगा? इक्वेटर कहलाएगा. ठीक है. व्हाट इज दिस थिंग इज कॉल्ड इक्वेटर. अच्छा, ठीक है, आप सही देख रहे हो, ठीक है. दिस प्लेस, the line which drawn over this sphere is called equator. Equator क्या करता है? पूरी दुनिया को 2 मेजर हिस्सों में, 2 हेमिस्फीयर्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है. So after that there is certain oceans और वो सारी चीजें जो है इक्वेटर के अंदर से गुजरती हैं. और उसमें क्या है? You have 4 डायरेक्शन. आप अपवर्ड्स जाओगे, ठीक है. If you go towards Asia, Europe, that comes in north. If you go towards Antarctica, तो वो क्या जाएगा? साउथ की डायरेक्शन में. अगर आप ओशनिया इंडियन ओशन की तरफ, पैसिफिक ओशन की तरफ जाते हो, दैट कम्स इन ईस्ट. और अगर आप जो है वो दूसरी तरफ जाते हो, दैट इज कॉल्ड वेस्ट. सो आपकी 4 डायरेक्शन से यू हैव अ कपल ऑफ आइडिया कि आपकी ये चीजें जो है वो किस डायरेक्शन में, किस सतह पे जो है वो मौजूद है. जैसे तो इन सब को क्या, ओके बेटा. सो अ मैप ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम शो करने के लिए उन्होंने एक फ्लैट ड्राइंग बनाई है. फ्लैट ड्राइंग के अंदर दरमियान में जो सर्ट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर. इक्वेटर जो होता है पूरी दुनिया को 2 सरफेस में, 2 हेमिस्फीयर्स में क्या करता है? डिवाइड कर देता है. ठीक है. आफ्टर दैट उसमें आपके पास 4 डायरेक्शन है. आप अपवर्ड्स मूव करोगे तो दैट कम्स नॉर्थ, नीचे की तरफ जाओगे साउथ है, वेस्ट है एंड ईस्ट है. ये 4 डायरेक्शन के जरिए से आपको पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट पर्टिकुलर कंट्री इज प्रेजेंट इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हाट रीजन, इन व्हिच कॉन्टिनेंट. ठीक है. एवरी कॉन्टिनेंट हैज सर्टेन कंट्रीज इन इट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अब आपने करना क्या है, यू नीड टू डू होमवर्क फॉर टुडे इज लर्न एंड राइट ऑल एक्टिविटीज, क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन नंबर 2. ठीक है. लेसन नंबर 2 जो है वो 1 आपने कर लिया था. नाउ यू हैव टू लुक एट द पेज. होमवर्क बेटे, होमवर्क है आपका कि आपने ये सारी एक्टिविटीज विच इज गिवन ऑन योर पेज, ठीक है, ये सारे जो है क्वेश्चन आंसर आपने सॉल्व करने हैं. दैट इज ऑन योर पेज नंबर 12 एंड 11. ठीक है. 11 और 12 पेज का आपको जो है वो अच्छे से जो है वो उसको काम को करना है. दैट इज फॉर योर होमवर्क. बेटे क्या नजर नहीं आ रहा आपको? ओशन बेटा, ओशन बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि समंदर को कहते हैं. ठीक है. और समंदर जो है मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं. कुछ छोटे समंदर भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं. ठीक है. सो फॉर दैट वी यूज जो है वो हम ये टर्म जो है वो यूज करते हैं. उसके अलावा आपने ये जो है वो होमवर्क घर से करना है. सेकेंडली यू ऑल हैव एन आइडिया, आप सबको पता है कि गैरिसन स्कूल सिस्टम का देयर इज अ यूट्यूब चैनल. ठीक है. यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पर लिखेंगे गैरिसन स्कूल सिस्टम. सो
व्हाट यू नीड टू डू इज आप उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। उस पर प्रेस बेल आइकन बना होता है, एक बेल नुमा घंटी नुमा चीज बनी हुई होती है, उसको आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम कोई लेक्चर नया अपलोड करेंगे वहां पर आपके पास नोटिफिकेशन फॉल पे आ जाएगी, तो आप आराम से यूट्यूब से अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और आपको नोट्स जो है व्हाट्सएप के थ्रू जा रहे हैं तो आप नोट्स जो है वो उसको प्रिपेयर साथ साथ करते जाओ, बिकॉज इफ यू आर लर्निंग ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट एज वेल, ठीक है। तो आप जो है वो जब आए स्कूल में तो अच्छे से वेल प्रिपेयर होके आए। उसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप